Wishing you all a very good morning to all my lovely students. Welcome in grade 5 social studies classes. I am Ojashwini, your teacher of SS, and today we are going to start a new block 12, our rights and duties. So I hope that some of you must study this block already. Means before this class. Oh, so very first you get your question of the day, and that is, what do you mean by fundamental? What is your question? What do you mean by fundamental? So, for knowing answer of this question, you need to watch the full video. So let's start, and our today's topic is our rights, our fundamental rights. And our aim is recognize the fundamental rights. Your resources are sheets of paper, S1, content book and notebook. Your keywords are fundamental, rights and court. So guys, now first you will tell me, what do you like to do the most? And how would you feel if someone stops you from doing what you like? So, I don't know about your likes and dislikes. So, you will tell me in the comment box. And our today's topic is our rights. So, in today's class, we will learn about the things that we are free to do, and these are known as rights. What? Rights. RIGHTS. Rights means हमारे अधिकार. Okay? So, we are going to perform a small activity. I will show you one picture because we are not present in the class, so we cannot play like a game. Come and choose your chit. So what we have to do, that I will show you this picture, and there are 6 situations. You have to choose one, but please everybody choose the different situations. So first, look and listen all the situations. 1. I can worship any god. Imagine someone is stopping you from doing this. How will you feel and what will you tell the person? Second situation, I can go where I want, but the same restrictions are there. Situation 3, I can stay what I think is right, but again restrictions are there. Then situation 4, I must be treated equally like everyone else, but again someone is being unfair to you. Situation 5, I cannot be forced to work, but again you are forcing for doing such works. Situation 6, I can speak in my own language, but again restrictions are there. So choose one situation. So do one thing guys, you are choosing same situations और सही भी है, पता नहीं कौन कौन सी चूज कर रहा. So रोल नंबर 1 से 10 तक सिचुएशन 1, 11 से 22, 21 से 33, ठीक है, 31 से 44, 41 से 55, 51 से 66,
फिर 61 से 70 अगेन 1, फिर 71 से 80 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन लेंगे. नाउ you will answer. Take your time for 2 minutes and think about the situation. If you want, you can pause the video before, see the situations carefully and choose. Then write the answers. So, tell me guys, how do you feel if someone stops you from doing something? Obviously, you feel bad, but actually, we all are free to do many things. Nobody can stop us, and this is the reality. But it doesn't mean आप शैतानी करें और आपके पापा मम्मी रोकें तो आप बोल दें मेरी मैम ने सिखाया ये हमारा फंडामेंटल राइट है. आप रोक नहीं सकते. पापा मम्मी रोकना तो क्या, आपको थप्पड़ भी लगा सकते हैं. तो पापा मम्मी के सामने ऐसी बातें नहीं करिएगा. ओके. नाउ गाइस, व्हाई शुड यू बी फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू? क्यों? बिकॉज द थिंग्स यू रीड अबाउट आर दोज डैट वी आर फ्री टू डू एज इंडियंस. जो भी 6 सिचुएशंस आपने पढ़ी है, एक्चुअली वो सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग फ्री हैं. एंड दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स. बट जब तक पापा मम्मी के अंडर में है तब तक वही करना है जो पापा मम्मी कहेंगे. ओके. राइट्स आर थिंग्स वी आर फ्री टू डू. राइट्स वो हैं जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प से हम जो चाहें वो कर सकते हैं. समथिंग दैट इज़ फंडामेंटल इज़ कॉमन टू ऑल. और ये जो भी फंडामेंटल है, मौलिक है, वो हम सबको समान रूप से मिला है. इक्वली वी ऑल हैव क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स. वी ऑल हैव इक्वली आवर फंडामेंटल राइट्स, बट आफ्टर 18 years old. Okay guys? Can you do everything that you want to do? Is it possible? अभी तो बिल्कुल नहीं होगा, पापा मम्मी के अंडर में हो. बट जो लोग एडल्ट हैं, जो मैच्योर हैं, जैसे आपके पेरेंट्स, भैया दीदी जो एबव 18 हैं, क्या वो लोग कुछ भी करने के लिए फ्री हैं? अगर नहीं, क्यों नहीं है? I will tell you. We cannot do everything that we want to do because we also have some limits with our rights. जरूरी तो नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं. Yes, we have some rights and we get it by our government, but we also have some limits. इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर एबव 18 और हम किसी से लड़ना चाहें, किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है, हमारा मन है खाने का, हम छीन के खा लें. नो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है. फंडामेंटल राइट्स की भी कुछ लिमिट्स हैं. द एक्सटेंट ऑफ आवर फ्रीडम इज एज फॉर एज वी डू नॉट हिंडर द फ्रीडम ऑफ अदर्स. हमारे अधिकार कुछ भी करने के लिए हम तब तक फ्री हैं जब तक हमारी फ्रीडम से हमारे अगल बगल या आगे पीछे वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही. अगर हमारी फ्रीडम से किसी दूसरे की फ्रीडम में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स हमारी फ्रीडम वहाँ से ख़त्म हो चुकी है. समझ गए? हमें वो सब करने का अधिकार है जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुँचे. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आप रास्ते में चले और हाथ में कुछ बच्चों की आदत होती है कोई भी चीज़ लेके घुमाते हुए चलते हैं. इज़ इट? तो हम अपने हाथ में लिए हुए उस डंडे या किसी भी बैंड को
या किसी भी रोप को बस उतनी दूर तक घुमा सकते हैं जहाँ से वो किसी दूसरे के सर में ना टकराए या किसी दूसरे को उसकी वजह से चोट ना लगे। क्लियर है ना? जैसे कि आप अपने स्कूल में आते हैं, सीट में बैठते हैं, एक सीट में 3 बच्चे बैठते हैं, तो आपकी जगह एक सीट में सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे बच्चे की जगह शुरू नहीं होती। एक सीट को इक्वली अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आपकी स्वतंत्रता केवल आपके 1/3 पार्ट तक ही है। एंड सेम थिंग अप्लाइज इन आवर लाइफ एंड इन आवर फंडामेंटल राइट्स। Okay guys, so can you list the rights that we have? Yes, of course we can list it. Like number 1, a right to equality. We all are equal. Is it? Nobody is poor or rich, big or small, है ना? High or low, we all are equal in front of our laws. Second, right to freedom. Like freedom of getting education, freedom to travel anywhere in India, freedom to worship any god. Then a right against exploitation. अगर हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, FIR कर सकते हैं और मदद मांगने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। नोबडी कैन डू रॉन्ग विद अस। देन नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वी कैन वर्शिप एनी गॉड वी वॉन्ट। हो सकता है आप बाई बर्थ हिंदू बॉर्न हुए हों, लेकिन आगे चल के आपको क्रिश्चियन अच्छा लगे और आप चर्च जाना चाहें, तो कोई भी आपको चर्च जाने से रोक नहीं सकता। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे लिए सभी गॉड इक्वल हैं। मेरा मानना है भगवान तो एक हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे स्कूल में आपका नाम मोहित होगा, घर में आपको पापा मम्मी मुन्नू कह के बुलाते होंगे, दादा दादी आपको बउआ कह के बुलाते होंगे, आपके दोस्त आपको मौनी कह के बुलाते होंगे। इसी तरह है तो आप एक ही ना, भगवान भी एक हैं, लेकिन हम उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। तो मैं तो हर ईश्वर के आगे अपना सर झुकाती हूँ, चाहे वो चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा, चाहे मस्जिद और चाहे मंदिर। इज इट? तो आप भी किसी भी धर्म को मानने के लिए फ्री हैं। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप चाहें तो कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। आप हिंदू हो के ईद में सेवइयाँ भी बना सकते हैं, क्रिसमस डे में आप केक भी ला सकते हैं, क्रिसमस ट्री भी सजा सकते हैं, है ना? ये हमारे कल्चरल राइट्स हैं। एजुकेशनल राइट, हर एक बच्चे को अधिकार मिला है कि वो जितनी शिक्षा चाहे उतनी शिक्षा, उतनी एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि ये उसका राइट है। देन 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सब हमको मिले हुए हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। एंड यू नो, in our Constitution of India, we can read and know more about our fundamental rights under the Article 12 to 35. हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर जानना चाहें हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं और भी बहुत कुछ डिटेल में, तो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 to 35 पढ़ना होगा। इज़ इट? सो हमारे फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं? आर्टिकल 12 to 35।
ठीक है, भूलिएगा नहीं. Then again I am going to tell you all the rights through a word web. So first, we can go to court if somebody stops us. अगर हमें कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स यूज़ करने से रोक रहा है, सो वी कैन डू अ FIR और वी कैन गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस. देन वी कैन वर्शिप एनी गॉड. We can go where we want to. Want is hidden in green leaves. Then we can be treated, we cannot be treated unequally. We all are equal in front of our Indian Constitution. We can say what we think is right. हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए या अपनी मन की बातें कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन सही बातें. मन की बातों का यह मतलब नहीं है कि हम लड़ाई झगड़े में किसी को गंदे शब्द कह सकें. इज इट? देन वी कैन परस्यू एनी लैंग्वेज. हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. Then we cannot be forced to work reserve. और कोई भी हमसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता हमारी इच्छा के विरुद्ध. अगर हमारा मन नहीं तो हमसे कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता. नाउ टेल मी, हु गिव्स अस दीज राइट्स? हमको ये अधिकार किसने दिया है? पापा ने, मम्मी ने, मुन्ना अंकल ने, जानशी मैम ने या ओजस्विनी मैम ने? किसने? नो, द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स एंड these rights are also protected by a government. Is it? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें किससे मिले हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. और हमारी गवर्नमेंट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. सो डू यू नो वाई आर दीज राइट्स इम्पॉर्टेंट? यस, ये जानना भी जरूरी है. Rights are very essential for the all-round development of the individuals and the country. हम में से हर एक, each of us and for our country, fundamental rights are very essential and we must know our fundamental rights. Then rights not only allow us to do things that are important for us but also give us those freedoms that we must have. हमारे राइट्स हमें केवल अधिकार नहीं देते, हमें फ्रीडम भी देते हैं वो सब करने की जो हमारे राइट्स के अंदर हमें मिली है. और हमारे राइट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं, दैट्स वाई नोबडी कैन टेक दीज राइट्स अवे फ्रॉम अस. और कोई भी हमसे हमारे अधिकार छीन नहीं सकता. वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कोर्ट इफ समबडी स्टॉप्स अस फ्रॉम एंजॉइंग दीज राइट्स. ठीक है, बट पापा मम्मी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करना. ठीक है, प्ले वाइल यू प्ले एंड स्टडी वाइल यू स्टडी. पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई और खेल के टाइम में खेल. सो गाइज, व्हाट इफ वी डिड नॉट हैव एनी राइट्स? क्या होता इफ वी डिड नॉट हैव एनी राइट्स? इफ वी डिड नॉट हैव राइट्स इट वुड बी लाइक लिविंग इन अ केज. जैसे कि पैरट हम लोग केज में रखते हैं, पिंजड़े में. अधिकार तो उसको सारे मिले हैं, खाना खाने के, उड़ने के, है ना. लेकिन क्या उसको वो अधिकार रियल में मिले? नहीं, क्योंकि हमने उसको पिंजड़े में बंद करके रखा है. एक पैरट अपने अधिकारों का इस्तेमाल तब कर सकता है जब वो पिंजड़े में ना हो. We would be controlled by others and not be able to do what we want it to do.
कोई और हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। सोचो, अगर आपको पिंजड़े में रखा जाए तो कितनी गुस्सा आएगी। आपको पसंद का खाना भी मिले, आपको सब कुछ मिले, लेकिन पिंजड़े में रहना पड़े। या समझिए आपको आपके घर के अंदर ही रखा जाए, बाहर ना निकलने दिया जाए, गुस्सा आएगी ना, बोर हो जाओगे ना, रोना भी बहुत आएगा। सोचो, ऐसे ही आपके पेट्स को रोना आता है जिनको आप लोग पिंजड़े में बंद करके रखते हो। इज इट? And now it's time to your application work. So first, don't forget to study block 12. Then finish S1 in nice handwriting, and also do PQs 3 and 4 with correct spelling, nice handwriting. Once again, have a look our fundamental rights. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, a right against exploitation. 4, a right to freedom of religion. 5, cultural and educational rights. 6, a right to constitutional remedies. And you know, guys, that these rights are also known as मौलिक अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। और फंडामेंटल को अगर इंग्लिश में कहा जाएगा, है ना अजय, क्योंकि आपका स्कूल तो इंग्लिश मीडियम है, तो अगर पूछा जाएगा कि फंडामेंटल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो समथिंग दैट इज नेसेसरी। ओके गाइज, सो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद नेक्स्ट लर्निंग प्लान। सो बाय।